ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی 75 سال ڈائمنڈ جوبلی منانے۔ میرے ساتھ یہاں اسلام آباد اسکول کے تمام لوگ، انتظامیہ اور بالخصوص جو بچے یہاں آئے ہیں پاکستان کا جھنڈا بنانے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر۔ یہ ڈی چوک ہمیشہ احتجاج کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن آج پورے پاکستان کی پولیس کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ، پریزیڈنسی کے ساتھ آج ڈی چوک پہ پاکستان کا نوجوان بچہ پورے پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی منانے، پاکستان کا جھنڈا بنانے اکٹھے ہوئے۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتی ہوں، بالخصوص وزارت داخلہ، منسٹر فار انٹیریئر رانا ثناء اللہ صاحب، آئی جی اسلام آباد، پورے پاکستان کے صوبوں کو جنہوں نے اپنے پولیس کے نوجوان یہاں مارچ پاس سلامی کے لیے بھیجے۔ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنے پولیس کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان کی جو پولیس ہے وہ آج کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی 75 سال منانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے۔ یہ تمام بچے، چھوٹے بچے آج پاکستان کا جھنڈا بنانے، پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے پر یکجہتی دکھانے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کو مبارک ہو کہ آج کا نوجوان بچہ پاکستان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے، اور یہی جذبہ 1947 میں تھا۔ 1947 میں جب علامہ اقبال کا خواب پورا ہوا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ جدوجہد جس نے پاکستان بنایا جمہوریت اور ووٹ کے ذریعے، آج ان بچوں کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی پاکستان کا نوجوان، جو کہ 65% آبادی پر مشتمل ہے، وہ اپنی آزادی کے لیے، آزادی دلانے والوں کے لیے اور 75 سال میں ملک کے محافظ افواج پاکستان، تمام آرمڈ فورسز، مسلح افواج، پاکستان پولیس، جو دن رات سرحدوں کے اوپر پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ پولیس جو ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہماری آزادی کے لیے دن رات اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 75 سال پاکستان کے اندر جب جمہوری دور ہوا، اس کے ڈیویڈنڈز اور اس کے ثمرات پاکستان کی عوام کو ملے۔ اور ان بچوں کو، جن کا مستقبل، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جمہوریت میں اس ملک کا، اس مٹی کا مستقبل ہے، جب جمہوریت اور جمہور کے اوپر شب خون مارا گیا، اور بھی زیادہ طاقت سے جمہوریت واپس پاکستان کے اندر لوٹی، اور وہ انہی بچوں کے مستقبل کے لیے آئین پاکستان، جو پاکستان کا 1973 کا آئین ہے، متفقہ آئین ہے، جو ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کا درس دیتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، پاکستان کو آئین ملا، جب ملک کے اندر جمہوری وزیر اعظم تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا، وزیر اعظم نواز شریف نے اس ملک کو کنیکٹیوٹی، وفاق کی اکائیوں کو آپس میں جوڑا، پاکستان کو پہلا موٹر وے دیا۔ اس کے بعد جو ایٹمی پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا، اس کو ہر دباؤ
पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। मैं उन तमाम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उन तमाम लोगों को खराजे तहसीन पेश करती हूं। डॉक्टर अब्दुल कदीर और वो तमाम साइंसदान, वो तमाम लोग जो इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने और दिफा को मजबूत करने में जिसकी निशानी चागी पहाड़ है। उसके बाद जब मुल्क में जमहूरी वजीर आजम आए, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो, लियाकत अली खान से ये सफर शुरू हुआ, जिस सफर का ख्वाब और जदोजहद इलामा इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखी। ये बच्चे आज उस बात का सबूत हैं, इनका जज्बा। उसके बाद इस मुल्क को मोटरवेज का जाल मिला, इस मुल्क को कनेक्टिविटी मिली, इस मुल्क को मास ट्रांजिट मिली। आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पंजाब के सूबे को मुल्क के तमाम सूबाई इकाइयों के साथ जोड़ा। उसके बाद आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 से 18 तक मुल्क के वजीर आजम मुस्लिम लीग नून और 16 में जो हुआ इस मुल्क के साथ, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क को रोशन किया, दहशतगर्दी खत्म की, इस मुल्क की तरक्की को 6% पर पहुंचाया, इस मुल्क में एहतसाब के अमल को अपने से शुरू किया। और आज 9 साल गुजर जाने के बाद भी अल्लाह ताला का फजल है, सारी जमहूरी क़यादत सुर्खरू हुई। और यही वो सम्राट हैं जो कभी एटमी कुव्वत की शक्ल में, कभी आइन की शक्ल में, कभी 4G की शक्ल में, कभी मोटरवेज के जाल की शक्ल में, कभी मेट्रोस के जाल की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम और इन बच्चों को मिले, कभी यूथ प्रोग्राम की शक्ल में, कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में। और यही वो जज्बा है, और इसी जज्बे के साथ जमहूरी क़यादत हमेशा उन शहीदों को जिन्होंने अपना लहू और अपनी शहादतें दी हैं, उन जवानों को जो अफवाजे पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, एफसीज, जिन्होंने अपनी शहादतें नोश करके इस मुल्क की हिफाजत की, आज ये बच्चे उनको खराजे तहसीन पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह ये जमहूरियत का सफर इसी तरह जारी रहेगा, इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। और 14 अगस्त 2022 को लियाकत अली खान के बाद वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 1954 के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना री रिकॉर्डेड नेशनल एंथम का इजरा करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें मैं तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, वो तमाम म्यूजिशियंस, वो तमाम ऑर्केस्ट्रा प्लेयर्स, टर्की की गवर्नमेंट जिन्होंने वो तमाम टेक्नोलॉजी, और ISPR स्टीयरिंग कमेटी जो जावेद जब्बार साहब हेड कर रहे थे, जिसका और इस सफ़र का आगाज़ हमने 2017 में किया। 2021 में ये स्टीयरिंग कमेटी बनी, उसका काम अगस्त 2022 कल वो दिन आएगा इंशाअल्लाह जब सुबह फ्लैग होइस्टिंग के साथ वजीर आजम पाकिस्तान का कौमी तराना, क्योंकि ये आज़ादी हमारी है, ये आज़ादी इन बच्चों की है, ये आज़ादी पाकिस्तान की है। और ये इंशाअल्लाह कौमी तराना जब आप कल देखेंगे तो उसके अंदर जो सारी डिपिक्शन है वो मुल्क की सॉलिडेरिटी, वफाक की अकाइयाँ, माइनॉरिटीज़ ने, अक़लियतों ने पाकिस्तान बनने में और 75 साल पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान की तरक्की में जो अपना किरदार अदा किया है, हम उसको भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह 75 साल के मौके पर हम तमाम उन लोगों को खराजे तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस जमहूरी अमल में अपना साथ दिया।
पाकिस्तान टेलीविजन तमाम वो प्रोग्राम्स दिखा रहा है आजकल जो पाकिस्तान बनने में जदोजहद हुई और 75 साल का सफर। मैं यहाँ प्राइवेट मीडिया को भी मुबारकबाद देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, कि उन्होंने जिस तरह मिलकर ये 75 साल की एक्टिविटीज को शोकेस किया है। और ये 2 दिन हम सबको बिला तफरीक कि हम किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, हमें ये 2 दिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए और अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, उन तमाम लोगों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए हमें अपने अपने घरों में कल सुबह आप सब घरों के ऊपर सब्ज हलाली परचम लहराएं, पाकिस्तान का झंडा लहराएं और पूरी दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने को, कुर्बान करने को तैयार हैं। उस झंडा वो अलामत होगा कि हम सब एक हैं और जो नफरत, जो तकसीम, जो फसाद फैलाने की कोशिश है हम उसको नाकाम बनाते हैं। और पाकिस्तान के नौजवान इस अमल को शुरू करें ताकि एक आवाज होकर हमारा पैगाम हो कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है और हम मुल्क में अमन चाहते हैं, मुल्क में मोहब्बत चाहते हैं। आज और कल इंशाअल्लाह 14 अगस्त को वो मोहब्बत के बीज बोएं, वो बर्दाश्त के बीज बोएं जो आइंदा आने वाले 75 साल जिसकी गवाही दे। 75 साल, 75,000 साल, 75 लाख साल और 75 गिनती खत्म हो जाए और इंशाअल्लाह पाकिस्तान सलामत रहे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में मैं वजारत इत्तलात को मुबारकबाद पेश करती हूँ। दिन रात मेहनत करके वो यहाँ गर्मी में इस तमाम तकरीबात का इंतज़ाम कर रहे हैं और खामोशी से, क्योंकि हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते बल्कि हम आज पाकिस्तान के 75 साल को और इस जमहूरी जदोजहद को क्रेडिट देना चाहते हैं। तमाम कैमरामैन, तमाम रिपोर्टर्स, तमाम मीडिया, पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान, तमाम लोगों को आज पूरा पाकिस्तान खराजे तहसीन पेश करता है जो तमाम एक्टिविटीज को आज ये पुलिस के दस्ते को और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह ये बच्चों के लिए, और आज रात को 12 बजे मैं आप लोगों के तवज्जुद से, आप लोगों की स्क्रीन से बताना चाहती हूँ, आज रात 12 बजे इसी जगह के ऊपर आतिशबाजी जब 12 बजेंगे पूरी कौम के लिए PTV लाइव टेलीकास्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइव टेलीकास्ट करेगा। पाकिस्तान की अवाम के लिए, तमाम उन लोगों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए जिन्होंने इस जदोजहद में हिस्सा लिया, शहादतें नोश फरमाई, अपना लहू दिया, अपनी जिंदगी दी, उन तमाम जमहूरी वुज़राए आज़म को खराजे तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला। और यहाँ लेजर शो और नेशनल फायर वर्क्स का इंतजाम किया गया है। सामने पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट एक जॉइंट डिक्लेरेशन पेश करेगा स्पीकर साहब की क़यादत में तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ, और अपने हीरोज को खराजे तहसीन पेश किया जाएगा उन तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जो मुंतखब नुमाइंदे हैं। कल सुबह फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के वजीर आज़म नया री रिकॉर्डेड नेशनल एंथम पेश करेंगे और तमाम सूबाई इकाइयों को वहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप सब लोग ये तमाम नशरियात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर और रेडियो पाकिस्तान और रेडियो FMs के ऊपर सुन सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाकिस्तान। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करना चाहती हूँ, लेकिन आप सब मिलके पाकिस्तान पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, बलोचिस्तान पुलिस जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।